وعلى ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ چونکہ میرا یہ آپ کے درمیان سیکنڈ ٹائم ہے، پچھلی بار بھی 10 روزہ 9 روزہ پروگرام آپ نے کرایا تھا، تو اس میں ایک دن کا موقع علامہ مولانا عظیم اللہ صاحب اور میرے ہم سبق ساتھی مولانا شاہد صاحب اور مولانا فخر بگڑا کر مولانا وسیم صاحب نے انہیں موقع دیا تھا۔ آج یہ سیکنڈ ٹائم ہے کہ میں یہ بھی میرا مدرسہ جو مادری نہیں رہا ہے، کیونکہ یہ علاقہ بڑا زرخیز ہے، پڑھے لکھے لوگ یہاں ہیں اور بہت سارے دل کے اسٹیج پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر ایمانداری سے ہر گھر سے گاؤں سے مولانا یہاں چلے آئے تو 2 اسٹیج ان کے لیے اسپیشل لگانا پڑے گا۔ یہ اتنے عالم دین حافظ قرآن، اور یہ جان لیجیے میرے آقا نے علم کے بارے میں کیا کہا کہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ آج یہاں کے جو انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں نے جگہ یوں کہا تھا کہ علم ایک ایسا شیرنی کا دودھ ہے کہ جو جتنا پیے گا اتنا ہی وہ قوم میں دہاڑے گا۔ تو آپ لوگ بھی یہ جو سلیقہ، یہ سسٹم، کیونکہ میں یہاں بہت دنوں سے دیکھتا ہوں بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے شاعر، فار یور کائنڈ انفارمیشن، میں بھی 15 منٹ یا آفٹر 20 منٹ یا 25 منٹ شاعر اسلام اختر ضیاء مظفر پوری بھی تشریف لانے والے ہیں۔ میرے بعد انشاءاللہ ان کی نعت نبی آپ سنیں گے۔ میں کچھ دیر کے لیے آپ کے درمیان حاضر خدمت ہوا۔ آپ لوگوں نے بڑے بڑے خطیبوں کے خطاب کو آپ لوگ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں۔ یہ میرے بھائی وسیم اختر رضوی جو الحمدللہ حافظ قرآن بھی ہے، عالم دین بھی ہے، انہوں نے مجھے چانس دیا، میں ان کا اپریشیٹ کرتا ہوں، ان کو دھنیواد کرتا ہوں۔ مولانا وسیم صاحب کا، مولانا شاہد صاحب کا، مولانا اللہ صاحب کا اور دیگر علماء کرام کا کہ جنہوں نے مجھے موقع دیا بولنے کے لیے آپ کے درمیان۔ چند منٹ میری بات کو غور سے سماعت فرمائیے۔ میں بار بار نہیں کہوں گا کہ آپ سبحان اللہ بولیے، جانتے ہیں آدمی 2 طرح کی قربانی دیتا ہے اور آپ نے ایک طرح کی قربانی دے ہی دی ہے۔ ایک طرح کی قربانی یہ دی ہے کہ مدرسہ سے گاؤں تھوڑی دور کے ہے، نیئر اباؤٹ 1 کلومیٹر، کوئی 2 کلومیٹر ہے، میں سب جانتا ہوں، 2-3 سال یہاں رہا ہوں شروع میں۔ تو آپ نے اپنے وقت کی قربانی اور نیند کی قربانی یہاں تو دے دی ہے، لیکن آپ خود ہی بہتر جانتے ہیں کہ سبحان اللہ بولیں گے تو اگر زبان آپ کی ہلتی رہے گی تو انشاءاللہ آپ کے کھاتے میں اللہ تعالیٰ نیکیاں مدد کرتا رہے گا، ورنہ زندگی کا کیا بھروسہ ہے۔ یہی مولانا وسیم صاحب ہیں، ان کے بھائی، اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب عطا فرمائے۔ اور جو ابھی دنیا میں ایک جھٹکے میں کیا جانتے تھے کہ ہم بڑھاپے کے دہلیز پہ قدم رکھیں گے۔ سنیے، بولنے والا کسی انداز میں بولے، آپ اس کی بات کو سنیے اور مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم ثواب پہ نیت سے سنائیں۔ ہر آدمی اپنے اپنے پیغام کو سناتا ہے، سارے لوگ بڑے لوگ ہیں، اسٹیج والوں کو نقل نہ کیا ہے، سمجھ رہے ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں، یہ بولے نہ بولے، ان کے بولنے کا غم نہیں، ان کا نہیں بولنا کسی بولنے سے بولے، سمجھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، میں بیان کا آغاز کروں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا۔ بھائی تھوڑا سا مشین سے، مین مشین سے ساؤنڈ بڑھاؤ، اوپر مت بڑھائیے، نیچے مین مشین سے بڑھائیے۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نقیب اہل سنت کہا ہے، پہلا نقیب ایسا دیکھا جب ہر جگہ میرا یہی معاملہ ہوتا ہے، ماما بڑا غریب ٹائم کا موقع دیں، سمجھ رہے ہیں۔ آج بھوکال کا زمانہ ہے، سارے لوگ یہ چونکہ نقیب کو مائک لے کے سامنے بیٹھنا چاہیے۔ جب میری بات آبادی آئی، دیکھیے حضرت کہاں چلے، تو آئیے، تو آ جائیے، سامنے آئیے تھوڑی دیر، کیونکہ آپ وہ بڑے ہیں، میں موسیقی صاحب آپ کو نہیں کہہ سکتا ہوں بار بار بولنے کے لیے۔ ایک مرتبہ بولیے سبحان اللہ۔
शायर ने कहा, गौर से सुनिएगा, कि लहू में डूब के सजदे में जा रहे हैं हुसैन। जानते हैं आज जो ये हाजी गौहर साहब का, हाजी इब्राहिम साहब का, ये दो अल्लाह के वली आपके दयारे मोहब्बत में आराम कर रहे हैं। और हाजी गौहर साहब से मेरी माँ ने खुद दुआ की तो मैं पैदा हुआ। ये उनकी करामत है कि मैं हाजी गौहर साहब की दुआओं से मैं इस दुनिया में अल्लाह ने मुझे भेजा। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह की सुनी का। और मैं बात और बताऊं, ये बात बोल के जा रहा हूँ, शायद ये माइक के जरिए मेरी बात को लाइव देखा जा रहा है को, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि हाजी इब्राहिम साहब उस शख्सियत का नाम है, चाहे वो इस इलाके का मुसलमान हो, चाहे इस मदरसे के तमाम असातिजा हो, या सुन हजरत अल्लामा अयूब शरीफुल कादरी हो, इनकी रहमतें सबके ऊपर बरसती हुई नजर आई है। आज जो भी खा रहा है सब इनका सदका खा रहे हैं, समझ रहे। आज हम उनके उर्स के लिए मैंने देखा बहुत सारे लोग ने सोचा उर्स मनाया जाए, प्रोग्राम कराया जाए, न कराया जाए। खाली 3 लोगों की जिम्मेदारी, मौलाना वसीम साहब, मौलाना शाही साहब और मौलाना अलीमुल्लाह साहब की जिम्मेदारी नहीं है उर्स कराने के लिए। तमाम लोगों के अंदर आपको शौक होना चाहिए, ये अंदर आपके अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि मेरे इलाके में एक अल्लाह का वली आराम कर रहा है। इनका इंतकाल प्रोग्राम 10 मुहर्रम हराम को हुआ था, तो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लीजिए और इस अल्लाह के वली के यादगार को बढ़ाइए। इसलिए शायर ने कहा, जहां अल्लाह वालों का बसेरा होने लगता है, वो जंगल हो या सेहरा हो, उजाला हो ही जाता है। वो जंगल हो या सेहरा हो, उजाला हो ही जाता है। मैं अपने असल मौजूद में आऊं, क्योंकि ये 10 मुहर्रम हराम की ये शब है और इसके बाद कल 11 मुहर्रम हराम हो जाएगा। आपको मैं बताऊं, आइए यहाँ से सुनिए, मैं आपको करबला लेके चलना चाहता हूँ। आप यहाँ से मेरी बात को तवज्जो से समाप्त करवाइए। शायद ने कहा, लहू में डूब के सजदे में जा रहे हैं हुसैन, नमाज तेरा मुकद्दर बना रहे हैं हुसैन। लहू में डूब के सजदे में जा रहे हैं हुसैन, नमाज तेरा मुकद्दर बना रहे हैं हुसैन। और खबर मिली है कि वो तशरीफ लाने वाले हैं, खबर मिली है कि वो तशरीफ लाने वाले हैं। इसीलिए हमने तो हुसैन के आमद में घर को सजा के रखा है। आइए एक और शायद आगे बढ़े। अल्लाह के रसूल इस्लाम के नवासों के बारे में शेर लिखता है कि सरे महशर रसूलों को खुदा हर बार देखेगा। सरे महशर रसूलों को खुदा हर बार देखेगा। सरे महशर रसूलों को खुदा हर बार देखेगा, मगर शब्बीर का चेहरा 72 बार देखेगा। मगर शब्बीर का चेहरा 72 बार देखेगा। जो भाभी नर से फौजे तो सरवर देख कर बोले, जो भाभी नर से फौजे तो सरवर देख कर बोले, मेरे अब्बास जाने दो इन्हें मुख्तार देखेगा। मेरे अब्बास जाने दो इन्हें मुख्तार देखेगा। रात आपने एक बात ही पिछले साल 10 मुहर्रम की तमाम तकरीरें आप लोगों ने सुनी है। आप जो लोग जानते हैं, इस मुहर्रम के महीने में इमाम हुसैन ने इस्लाम के बका और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने अहलो अयाल की कुर्बानी दी। आइए आका हुसैन कौन है, इस हुसैन के बारे में रसूलुल्लाह ने कहा था, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। पता क्या चला प्यारे, जो हुसैन से मोहब्बत करता है, मेरे आका फरमाते हैं, जो हुसैन से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है, जो हुसैन से बगावत करता है वो मुझसे बगावत करता है। आइए उसी हुसैन, जब आका हुसैन के बारे में आप जानना चाहते हैं कौन है हुसैन, तो आइए आप लोगों को बताऊं कि हुसैन के ताल्लुक से एक शायर ने कहा है कि गुलशन में एक शजर है जिसे उम्र भर न जाए, गुलशन में एक शजर है जिसे उम्र भर न जाए,
बाहर गमे हसन है तो अंदर गमे हुसैन, बाहर गमे हसन है तो अंदर गमे हुसैन। रात आपने देखा होगा इस शेर का मैं डिफिनेशन करूं, शेर की तशरीह करूं तो आपको मालूम पड़ेगा। आइए देखिए, शायद ने कहा गुलशन में एक शजर है इसे उम्र भर न जाए। आपने देखा होगा मेहंदी का एक पौधा, इसे आप देखते होंगे, वो पौधा छोटा होता है, देखने में मासूम होता है, लेकिन गौर से सुनिएगा, आपने उस पौधे को देखा होगा। मैं भी एक दिन देखा कि मौलाना शाही साहब मेरे साथ थे, उस मेहंदी के पत्ते को हर आदमी सुरख रहा था, उसे तोड़ रहा था। मैं परेशान हो गया, मौलाना साहब से पूछा, हजरत ये बताइए, ये मेहंदी का पौधा छोटा है, देखने में मासूम नजर आता है, अभी इसके पत्ते छोटे छोटे हैं, इसकी शाखें नहीं फैली है, लेकिन इस पत्ते को हर आदमी को तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। हर आदमी इसको सुन रहा है, करीब आ रहा है, इसे सुन रहा है, जवान आ रहा है, इसे सुन रहा है, औरतें आ रही है, इसके पत्ते को सुन रही है, बच्चे आ रहे हैं, इसके पत्ते को सुन रहे हैं। मैं परेशान हो गया और उनसे पूछा, हजरत इस पत्ते पे इसके इतना तोड़ा जा रहा है। उन्होंने जवाब दिया, आप नहीं जानते हैं इसमें एक हिकमत पोशीदा है, इसमें एक राज छुपा हुआ है। जब इसके पत्ते को तोड़ने के बाद से सील पे मार दिया जाता है तो अब इसको बाल में लगाओ तो नाली नजर आती है, चेहरे पे लगाओ तो नाली नजर आती है, आप नाखून में लगाओ तो नाली नजर आती है, हाथ में लगाओ तो नाली नजर आती है। इसी तरह आप देखिए, यानी मेहंदी का जब पत्ता पहले सुलगने से पहले और सुलगने के बाद से और सुलगता है तो आलू सुलगता है तो हरा रहता है, लेकिन पीस दिया जाता है तो लाल होता है। यानी उसमें उस पत्ते पे उन्होंने जवाब दिया, तुम नहीं जानते हो इसके पत्ते पे रंगे हसन भी पाया जा रहा है और रंगे हुसैन भी पाया जा रहा है। आप देखिए, इसी तरह जब रंगे हसन उसमें हदी के पत्ते पे पाया जा रहा है तो जमाना उनसे चैन में नहीं रहने देता है। कभी बदर में सुनता, कभी खम्मा में सुनता, कभी खंडा में सुनता, कभी हुरैन में सुनता, कभी कायद में सुनता, कभी शगले, कभी बढ़ता गया, जमाना सुनता गया और सबके अखिल में मेरे मन को गड़बड़ा ने सुन दिया। उस में एक शगल है जिसे उम्र भर में चैन, बाहर गमे हसन है तो अंदर गमे हुसैन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत बाहर गमे हसन है तो अंदर गमे हुसैन। अल्लाह ताला आपकी कमाई में बेशुमार बरकतें अता फरमाए। आप देखिए, मैं आपके सामने बयान कर रहा था, आका हुसैन कौन है, कौन है हुसैन, हुसैन कौन है, इनकी शख्सियत के बारे में मुझ जैसा आदमी जब बोलता है तो 10 रातें कम पड़ जाती है। आइए जरा देखिए, एक हदीस पाक मैं आपके सामने पेश करूं कि अल्लाह के रसूल के उस सलाह से इमाम हुसैन की फजीलत क्या है, उनका मर्तबा क्या है, उनकी शान क्या है। आइए जरा देखिए, आप चलिए मदीने पाक की सरजमीन पे, आप अपने ज़हन और दिमाग को लेके चलिए और आका हुसैन को देखिए। ये आका हुसैन कौन है? आओ देखो, एक सहाबी रसूल है, अल्लाह के रसूल मदीने के गलियों में जब वो सहाबी घूमते हैं तो कुफारे मुशरिकीन ने एक दिन उनको घेरा और घेरने के बाद से कहा, ये मेरे सहाबी, ये या रसूल अल्लाह के सहाबी, आपको मालूम है कि तुम्हारे घर में जो बेटा है वो बेटा तेरा बेटा नहीं है। गौर से सुनिए, वो बेटा तेरा बेटा नहीं है। इतनी तकलीफ लगी, वो आगे बढ़ गए, आके बीवी से पूछा कि बताओ बेटा किसका बेटा है। बीवी ने कहा, ए मेरे रसूल के सहाबी, बेटा आपका बेटा है। इतना कहा है, दूसरे दिन वो सहाबी रसूल फिर मदीना के गलियों में घूम रहे हैं, वो फारे मुशरिकीन ने फिर उन्हें घेरा है और घेर के कहा, ए सहाबी, वो बेटा जो है आप देखिए, कहीं आपके बच्चे के बारे में यदि नौकर चौराहे पे कोई सवाल करे तो बेटा तेरा बेटा नहीं है, आपको कैसे लगेगा। उस सहाबी को भी तकलीफ हुई, वो फिर आते हैं, आने के बाद से अपने बीवी को लिया है, अपने बच्चे को साथ किया है और चले हैं मुस्तफा का इनाम की बारगाह में। इस सवाल को पूछ रहे थे कि या रसूल अल्लाह की बारगाह में चला जाए और जब के पूछा जाए, या रसूल अल्लाह, ये बेटा किसका बेटा है? मेरे आकाए करीम इस्लाम की बारगाह में सहाबी जा रहे हैं। या देखो तो उस सहाबी का अंदाज देखो, नबी पाक की बारगाह में जब सहाबी पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद